Jai Hind students, welcome back to my class Aman Sir classes. Jai Hind students, welcome back to my class. Today I will explain about completing square method. Completing square method is something complicated. I will try to explain in easy way. So let's see. Completing square method is also known as Sridharacharya method, because by using this method we will derive the formula. That formula is known as Sridharacharya formula. Okay, now let's see. We know that the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Our first step is cross change this constant term. Okay, so we will get ax square plus bx is equal to minus c. Now eliminate the coefficient of x square. Okay, so how we can eliminate the coefficient of x square? By dividing both sides a. Okay, divided by a both sides. So we will get ax square plus bx upon a is equal to minus c upon a. Now ax square upon a plus bx upon a is equal to minus c upon a. Now a cancel, so we can write x square plus b by a into x is equal to minus c by a. Now we can write this x square plus x into b by a is equal to minus c by a. Now look here, we have x square plus x into b by a is equal to minus c by a. We will try to bring this left hand side in form of a square plus 2ab plus b square, because we can write this a plus b whole square. Okay, by comparing we will get a is equal to x, so here x square is present and here x into b by a present. Okay, so for completing square method we need this much terms. Okay, so we need 2. Okay, here a is equal to x, so this much completed a. We need 2. So how we can get 2? So we anywhere we can multiply by 1. Here nothing means 1 is present, and in place of 1 we can write 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, because if we simplify then we will get 1. Simplify then we will get 1. Here we will simplify then we will get 1. So in place of 1 we can write 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 100 by 100, 1000 by 1000. Anything multiply and divide we can take in place of 1. Okay, because if same value by same value we will multiply and same value we will divide, then after simplifying we will get 1. Now we can write like this: 2 by 2 into x into b by a. Okay, this step is very important. Okay, this is the main step, you can say, is equal to minus c by a. Now here we can write x square plus 2a. Okay, x square plus 2a, and this remaining things is b. Okay, so we can write b by 2a. This is our
capital B. If we will compare by this formula, then this will be our capital B. Now C by A. Now we have A square plus 2AB. Okay, sorry, here A not, here X. A square plus 2AB has completed. Now we have got the value of capital B. Now we need B square. So this is our B. So by squaring this, we will add both sides, because we can add same digit, same variable both sides. We can subtract same variable or same digit both sides. Okay. So add B by 2A whole square both side. Okay, so we will get x square plus 2x into B by 2A plus B by 2A whole square is equal to minus C by A. Okay, now we have got A square plus 2AB plus B square. So we can write A plus B whole square. Here in place of A, x is present, and in place of B, B by 2A is present. Okay, so now we can write x plus B by 2A whole square is equal to minus C by A plus B square, and 2 square will become 4 and A square. Now x plus B by 2A is equal to, by taking LCM we will get 4A square. Now 4A square we will divide by A, then A cancel, we will get 4A multiply by its numerator, then 4A into minus C, we will get minus 4AC. Similarly 4A square divided by 4A square divided by 4A square, then we will get 1, and 1 into B square, we will get B square. Now x plus B by 2A whole square will become square root, and we can write like this: B square minus 4AC upon 4A square. Now x plus B by 2A is equal to, we can write like this: plus minus under root B square minus 4AC upon, we can take outside from this square root, so 4 square root of 4 is 2, and square root of A square is A. Now here plus B by 2A will become minus B by 2A whole AC upon 2A. Okay, now by taking LCM we will get 2A and LCM, and here minus B plus minus root B square minus 4A. So taking positive, then we will get x is equal to minus B plus B square minus 4AC upon 2A, and when we will take negative, then we will get x is equal to minus B minus root B square minus 4AC upon 2A. This is the roots for this quadratic equation, and this method is completing square method, because we are using this completing square formula. Okay, that's why this method is known as completing square method. So here this one is our main formula
ओके नाउ completing square method. Okay, completing square method. First we know that ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, this is the standard form of quadratic equation. ये हमारा standard form है quadratic equation का. Okay, now first step is what? We will cross change this constant term right side. So plus c इस साइड जाके माइनस सी हो जाएगा. ओके, देन आफ्टर ये यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमको हटाना है. तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कैसे हटाएंगे? अगर हम ए का दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए डिवाइडेड बाई ए बोथ साइड. ओके, अब इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं. ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस है तो प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए. अब देखो एक्स स्क्वायर ए कैंसल, एक्स स्क्वायर बचेगा बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए. अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस किसी भी वेरिएबल या नंबर के सामने अगर कुछ भी नहीं रहता तो उसका कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं. मतलब यहाँ 1 ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो 1 इंटू एक्स इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए. और हम 1 को 2/2 3/3 मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमको 1 मिलता है. और 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई करने से उस वहाँ पर प्रेजेंट नंबर या वेरिएबल के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है. मतलब हम 1 का कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और 1 के जगह में हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं. चाहे 2/2 लिखें, 4/4 लिखें, 100/100 लिखें, 99/99 लिखें, 1,00,000/1,00,000 भी लिख सकते हैं. जितना हम चाहे उतना लिख सकते हैं. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें इसको कंप्लीट करने के लिए हमको 2 का ज़रूरत है. इसलिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 इंटू एक्स. ओके, 1 के जगह में 2/2 लिखेंगे. इसको सिंप्लीफाई करने से 1 मिलता है. मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टेप है वही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें का. ओके, दिस स्टेप इज यू कैन से दैट heart of this method. Okay, this step is main point of this method. So 2/2 into x. Okay, b by a is equal to minus c by a. अब देखो हम जब उस फॉर्मूले से इसका कंपेयर करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. ओके, तो जब हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो हमारा a की जगह में x है. ठीक है, x स्क्वायर. ओके, प्लस 2ab 2a और ये जो बचा हुआ जो वैल्यू है वो है हमारा b. ओके, जो बचा हुआ वैल्यू है वो है हमारा b. तो b/2a है वो हमारा यहाँ पर कैपिटल B का वैल्यू हो जाएगा समझ लो. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए. अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x b/2a. ये जो b/2a है वो हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो इस b के वैल्यू के इक्वल होगा. स्मॉल b/2a उस कैपिटल B के वैल्यू के इक्वल होगा जब हम इसमें कंपेयर करते हैं. तो इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए. नाउ ऐड b/2a होल स्क्वायर बोथ साइड. b/2a क्योंकि अब हमको पता चल गया कि हमारा ये जो कैपिटल B का वैल्यू है वो स्मॉल b/2a है. तो हमको अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए ये b स्क्वायर का भी ज़रूरत है. इसी वजह से हम b/2a का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड सेम डिजिट का प्लस, सेम डिजिट का सब्ट्रैक्शन, सेम डिजिट का एडिशन कर सकते हैं. ओके, इसलिए हम b/2a का दोनों साइड में b/2a का स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू b/2a
प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इस साइड में भी ऐड होगा, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर उस साइड में भी ऐड होगा। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि ए का वैल्यू x है और ये b का वैल्यू b बाई टू है, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह में x एंड b की जगह में b बाई टू का होल स्क्वायर बन गया। ये फॉर्मूला बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसी के कारण इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस सी बाई ए, अब इधर राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट साइड में है माइनस सी बाई ए प्लस बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर। ओके, अब देखो सिंप्लीफाई करो राइट साइड को। सो इधर तो लेफ्ट साइड सेम टू सेम है, राइट साइड सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसका एलसीएम निकलेगा 4a स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम निकलेगा 4a स्क्वायर, क्योंकि ये 4a स्क्वायर इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा एलसीएम निकलता है उससे हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जो एलसीएम निकलता है उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फिर जो कोसेंट मिलता है उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, तो हमको मिलेगा 4a। अब उस 4a को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो 4a इंटू माइनस सी, तो हमको मिल जाएगा ये माइनस 4ac प्लस इधर देखो अब 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर से इस 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 और उस 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू बी स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा ये बी स्क्वायर। ओके, अब देखो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को उधर क्रॉस चेंज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो इस साइड ये स्क्वायर रूट मिल जाएगा। और हम देखो ये माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर है, उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। ओके, और ये डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर, तो x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर, अब इसको सेपरेट सेपरेट अंडर रूट, या अगर अंडर रूट से बाहर निकल रहा है उसका पेयर है तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये तो एज यूजुअल रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 8, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a। ओके, अब देखो x प्लस बी बाई टू है, ये प्लस बी बाई टू है, उधर जाके हो जाएगा माइनस बी बाई टू है। ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम यही हमारा x का वैल्यू निकलेगा, इसका एलसीएम होगा 2a। ठीक है, डिनोमिनेटर से मैं तो सीधा सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यही हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला मेथड जब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम फॉर्मूला मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूला को ही हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला बोलते हैं, और इस फॉर्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ का प्लस साइन को लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जब नेगेटिव साइन को लेंगे तो यहाँ का नेगेटिव को ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगा। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद।